الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اولاد کی پیدائش سے متعلق 5 آداب۔ پہلا ادب خوشی منانا۔ لڑکا ہو یا لڑکی اس کی پیدائش پر خوشی منائی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ لڑکا پیدا ہو تو بہت خوشی منائے اور لڑکی ہو تو غم و حزن کا اظہار کرے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے لیے ان میں سے کس میں بھلائی ہے۔ بہت سے بیٹے والے خواہش کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ہی نہ ہوتی یا لڑکے کی جگہ لڑکی ہوتی، نیز لڑکیوں کی طرف سے سلامتی زیادہ اور ان میں ثواب بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ بہن بیٹی کی اچھی پرورش سے متعلق 6 فرامین مصطفیٰ۔ جس کی ایک بیٹی ہو وہ اسے اچھی طرح ادب سکھائے، اچھی غذا کھلائے اور اللہ عز و جل نے اسے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے بیٹی کو بھی دے، تو وہ قیامت کے دن دوزخ کے دائیں بائیں آڑ بن کر اسے یعنی اپنی پرورش کرنے والے کو جنت کی طرف لے جائے گی۔ ما من احد یدرک ابنتین فیحسن الیہما ما صاحباتہ الا ادخلاتہ الجنہ، یعنی جس کسی کی بھی 2 بیٹیاں ہوں اور جب تک وہ اس کے پاس رہیں وہ ان کے ساتھ بھلائی کرے تو یہ دونوں اسے جنت میں داخل کریں گی۔ من کانت لاہو ابنتانی او اختانی فاحسن الیہما ما صاحباتہ کنت انا وہو فی الجنت کہاتین، یعنی جس کی 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور جب تک وہ اس کے پاس رہیں یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے شہادت کی اور درمیان والی انگلی۔ جو شخص مسلمانوں کے بازار میں سے کسی بازار کی طرف گیا اور کوئی شے خرید کر گھر لایا، پھر صرف بیٹیوں کو وہ شے دی، بیٹوں کو نہ دی، تو اللہ عز و جل اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے گا اسے عذاب نہ دے گا۔ جو شخص بازار سے کوئی عمدہ چیز خرید کر اپنی اولاد کے لیے لایا، گویا اس نے انہیں صدقہ دیا، پھر وہ چیز جب انہیں کھلائے تو بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کو کھلائے، کیونکہ جس نے بیٹیوں کو خوش کیا گویا وہ اللہ عز و جل کے خوف سے رویا، اور جو خوف خدا سے روئے گا اللہ عز و جل اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دے گا۔ جس شخص کی 3 بیٹیاں یا بہنیں ہوں اور وہ ان کی مشکلات و سختیوں پر صبر کرے تو اللہ عز و جل ان پر رحم کرنے کے سبب اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک شخص نے عرض کی اگر 2 ہوں تو ارشاد فرمایا 2 ہوں تو بھی، عرض کی اگر 1 ہو تو ارشاد فرمایا 1 ہو تو بھی، یہی فضیلت ہے۔ دوسرا ادب نو مولود کے کان میں آذان دینا۔ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں آذان دی جائے کہ سنت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب خاتون جنت شہزادی کونین حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ان کے کان میں آذان کہی۔ ام سبیان بیماری سے حفاظت۔ مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ولد لہ مولود فاذن فی اذنہ الیمنی فاقام فی اذنہ الیسری دفعت عنہ ام الصبیان، یعنی جس کے گھر بچے کی پیدائش ہو اور وہ اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں میں اقامت کہے تو اس سے ام الصبیان دور ہو جائے گا۔ مستحب ہے کہ جب نومولود بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے تاکہ یہ اس کا سب سے پہلا کلام ہو، اور 7ویں دن اس کا ختنہ کیا جائے کہ حدیث پاک میں اسی طرح آیا ہے۔ تیسرا ادب اچھا نام رکھنا۔ اولاد کا ایک حق یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمیتم فعبدوا، یعنی جب تم نام رکھو تو ایسا رکھو جس میں عبودیت کا اظہار ہو، یعنی ایسا نام رکھو جس میں لفظ عبد آتا ہو جیسے عبداللہ وغیرہ۔ اللہ عز و جل کو پیارے نام۔ مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، یعنی اللہ عز و جل کے نزدیک زیادہ پیارے نام عبداللہ و عبد الرحمن ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی، یعنی میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت ابو القاسم کے ساتھ اپنی کنیت نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور کنیت جمع کرنے کا حکم۔ علماء کرام رحمۃ اللہ السلام فرماتے ہیں یہ حکم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تھا، کیونکہ اس وقت کنیت کے ساتھ یا ابا القاسم کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اب کوئی حرج نہیں، البتہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور کنیت کو جمع نہ کیا جائے کہ حدیث مبارک میں ہے۔
ला तजमऊ बैना इसमी व कुनियती, यानी मेरे नाम और मेरी कुनियत को जमा ना करो। कहा गया है कि कुनियत पर कुनियत रखने का हुक्म भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तैयबा के साथ खास था। मरवी है कि एक शख्स को अबू ईसा कहा जाता था। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना ईसा ला आबुन लहू, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कोई बाप नहीं था। पास आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस नाम को नापसंद फरमाया। जो कच्चा बच्चा गिर जाए उसका भी नाम रखना चाहिए। चुनांचे हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन मुआविया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मुझे खबर पहुंची है कि कच्चा गिरा हुआ बच्चा क़यामत के दिन अपने बाप के पीछे चिल्लाएगा और कहेगा, तुमने मुझे ज़ाया कर दिया और बगैर नाम के ही छोड़ दिया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमान ने कहा, यह कैसे हो सकता है, हालांकि उसे मालूम नहीं कि वो लड़का है या लड़की। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान अलैहिर्रहमान ने जवाब दिया, उन नामों में से कोई नाम रखे जो लड़का व लड़की दोनों के लिए बोले जाते हैं, जैसे हमजा, अम्मारा, तलहा और उतबा। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नकुम तदऊना यौमल क़ियामति बि अस्माइकुम व अस्माइ अबाइकुम फअहसिनु अस्माअकुम, यानी क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे और तुम्हारे आबा यानी बापों के नामों से पुकारा जाएगा, लिहाजा अपने नाम अच्छे रखो। नापसंदीदा नाम तब्दील कर देना मुस्तहब है कि हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आस नाम को अब्दुल्ला से बदल दिया। हज़रत सैयदतुना ज़ैनब बिनत अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम बर्रा था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपना तज़किया बयान करती हो, यानी अपनी बड़ाई और तारीफ़ करती हो। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका नाम ज़ैनब रख दिया। इसी तरह अफलाह, यसार, नाफे और बरकत नाम रखने के बारे में भी मुमानियत आई है, क्योंकि अगर किसी का नाम बरकत हो और पूछा जाए कि बरकत है तो कहा जाएगा नहीं। चौथा अदब अकीका करना। बच्चे की पैदाइश पर उसकी तरफ से अकीका किया जाए कि सुन्नत है। अकीका में लड़के की तरफ से 2 बकरियां और लड़की की तरफ से 1, इसमें कोई हर्ज नहीं कि नर हो या मादा। चुनांचे उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लड़के की विलादत पर 1 जैसी 2 बकरियों और लड़की की विलादत पर 1 बकरी के साथ अकीका करने का हुक्म फरमाया। न्यूज़ मरवी है कि हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से अकीका में 1 बकरी ज़िबा की, लिहाजा ये रिवायत अकीका में 1 बकरी पर इक्तफा करने की रुखसत पर दलील है। एक रिवायत में है कि हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अल गुलामी अकीकातुहु फा अखरिकु अनहु मा अनहु दामम व आमीतु अनहुल आज़ा, यानी लड़के के साथ अकीका ये लड़के के साथ अकीका है, उसकी तरफ से खून बहाओ यानी जानवर ज़िबा करो और उससे अजियत को दूर करो यानी उसका सर मुंडवा दो। सुन्नत है कि बच्चे के बालों के वजन के बराबर सोना या चांदी सदका की जाए। चुनांचे हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत के 7वें दिन खातून जन्नत शहज़ादी कौनैन हज़रत सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुक्म फरमाया कि इनके बाल मुंडे जाएं और बालों के वजन के बराबर चांदी सदका की जाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अकीके के जानवर की हड्डियां ना तोड़ी जाएं। 5वां अदब घुट्टी देना। सुन्नत यह है कि खजूर या कोई मीठी चीज़ चुबा कर नौमलूद के मुंह में डाली जाए, इसे तहनीक यानी घुट्टी देना कहते हैं। चुनांचे हज़रत सैयदना इस्मा बिनत अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती हैं, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुकाम कुबा में विलादत हुई तो मैं उन्हें लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुई और हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक गोद में रख दिया। आपने एक खजूर मंगाई और चुबा कर लौब दहन उनके मुंह में डाला तो सबसे पहली चीज़ जो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पेट में गई वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक लौब था। फिर खजूर उनके मुंह में डाली और उनके लिए बरकत की दुआ फरमाई। बाद हिजरत इस्लाम में सबसे पहले हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई और उनकी पैदाइश पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि उनसे कहा जाता था कि यहूदियों ने तुम पर जादू कर दिया है जिसके सबब तुम्हारे यहाँ कोई औलाद नहीं होगी। तलाक के ज़रिए जुदाई। तलाक देना मुबाह जायज़ है, लेकिन ये अल्लाह तआला के नज़दीक जायज़ अमूर में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमर है और ये सिर्फ उस सूरत में जायज़ है जब उसमें बातिल तौर पर एज़ा ना पहुँचे। तलाक देने में गोया एक तरह की एज़ा देना है और किसी को उस वक़्त तक एज़ा देना जायज़ नहीं जब तक उससे कोई जुर्म सरजद ना हो या खुद उस शख्स को कोई शदीद ज़रूरत लाहक ना हो। फरमाने बारी ताला है, फ़ाइन आतानकुम फला तबगु अलैहिन्ना सबीला, सूरह निसा तर्जुमा। फिर अगर वो तुम्हारे हुक्म में आ जाएं तो उन पर ज़्यादती की कोई राह ना चाहो, यानी जुदाई का कोई हीला बहाना तलाश ना करो। अगर वालिद बेटे की बीवी को नापसंद करता हो तो बेटे को चाहिए कि उसे तलाक दे दे। चुनांचे
सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद, तूबु इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। वालिदैन के हुक्म पर बीवी को तलाक देना। अहनाफ के नज़दीक वालिदैन के कहने पर बीवी को तलाक देने का हुक्म, बिला वजह शरई वालिदैन बीवी को तलाक देने का हुक्म दें तो उनकी अताअत वाजिब नहीं। हज़रत इलामा मुफ्ती मोहम्मद वकारुद्दीन अलैहि रहमा बयान फरमाते हैं, अगर बीवी की तरफ से कोई ज़्यादती और कसूर नहीं है, माँ सिर्फ अपनी बेटी का बदला लेने के लिए बेटे को तलाक देने का कहती है, तो वालिदा के इस हुक्म की फरमाबरदारी बेटे पर वाजिब नहीं। माँ को समझाए कि तुशरुई और सख्त कलामी से इज्तनाब करे। यूं ही आप रहमतुल्लाह ताला अलैह एक सवाल के जवाब में इरशाद फरमाते हैं कि उलमा फरमाते हैं, अगर वालिदैन हक पर हों तो उनके कहने से तलाक देना वाजिब है। अगर बीवी हक पर है, जब भी माँ की रजामंदी के लिए तलाक देना जायज़ है। इलामा मौलाना मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा इस हदीस मुबारक वला ताउका वालिदै का व इनिमरा का अन तखरुजा मिन अहलिका व मालिक, यानी अपने माँ बाप की नाफरमानी न करो अगरचे वो तुम्हें अपने घर बार और माल से निकल जाने का हुक्म करें, कि तशरीह में फरमाते हैं कि बाएतबार असल तलाक जायज़ है, लिहाजा अपनी बीवी को तलाक देना वाजिब नहीं है। अगर उसको तलाक ना देने में वालिदैन को तकलीफ शदीद हो, क्योंकि तलाक देने में उसको नुकसान होगा, बस वालिदैन की वजह से उसका मुकल्लफ नहीं, क्योंकि वालिदैन के मुशफ़क़ होने की शान ये है कि मुशफ़क़ होते हुए वो तलाक का हुक्म ना दें। लिहाजा अगर वो बेटे पर शफ़क़त भी करें और तलाक का हुक्म भी दें तो ये उनकी हिमाकत है जिसकी तरफ तवज्जो नहीं की जाएगी। और हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह इस हदीस मुबारक के तहत फरमाते हैं, ये हुक्म इस्तहबाबी है। वालिदैन के हुक्म पर बीवी को तलाक दे देना मुस्तहब है। हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इशारा पाक कर तलाक दे दी। ये मुस्तहब पर अमल था, मगर बाप के हुक्म से बीवी या बच्चों पर जुल्म न करे। जुल्म से बचना अल्लाह व रसूल का हुक्म है, उनका हुक्म माँ बाप के हुक्म पर मुकद्दम है। ऐसे ही अगर माँ बाप कुफर या मासियत का हुक्म दे तो ना माने। रब अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, व इन जहादाका अला अन तुशरिका बिमा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतीहुमा। सूरह लुक़मान। तर्जुमा, अगर वो दोनों तुझसे कोशिश करें कि मेरा शरीक ठहराए ऐसी चीज़ को जिसका तुझे इल्म नहीं, तो उनका कहना ना मान। दारुल तरीका हज़रत इलामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा फरमाते हैं, तलाक देना जायज़ है मगर बेवजह शरई ममनू है, और वजह शरई हो तो मुबाह, बल्कि बाज़ सूरतों में मुस्तहब। मसलन औरत उसको या औरों को इज़ा देती या नमाज नहीं पढ़ती है। इलामा शामी कुदसरा सामी फरमाते हैं कि तलाक में असल ममनू है मगर किसी की ज़रूरत की बिना पर मुबाह है, लिहाजा बग़ैर ज़रूरत और सबब के तलाक देना हिमाकत, बेवकूफ़ी, महज नाशुक्री और औरत और उसके अहल व अयाल को तकलीफ देना है। इसीलिए सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फ़ुक़हा फरमाते हैं कि इखलाक का जुदा होना और ऐसे बुग़्ज़ से जिसकी वजह से हदूद अगर कायम न कर रख सकें, ये ज़रूर तलाक का सबब यूं ही बुढ़ापे और शक शुबा, बल्कि इस किस्म की और कोई ज़रूरत हो तो तलाक मुबाह है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मेरी एक बीवी थी जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था, जबकि मेरे वालिद उसे नापसंद करते और मुझे तलाक देने का हुक्म देते थे। चुनांचे मैंने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ की तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्ने उमर, अपनी बीवी को तलाक दे दो। इस रिवायत से मालूम हुआ कि वालिद का हक मुकद्दम है, लेकिन ये उस वक़्त है जबकि वालिद उस औरत को महज नापसंद करता हो, किसी गर्ज फासिद की वजह से तलाक देने का ना कहता हो, जैसे अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसे नापसंद करते थे। अगर औरत ससुराल वालों को बुरा भला कहती हो तो अगर औरत शौहर को अजियत दे और उसके घर वालों को बुरा भला कहे तो वह खुद मुजरिम होगी। इसी तरह जब उसके अखलाक बुरे हों या दीनी एतबार से उसमें कोई खराबी हो तो भी वह मुजरिम होगी। चुनांचा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, ला यखरुजना इल्ला अन यातीना बिफाहिशातिन मुबय्यनातिन। सूरह अल-तलाक। तर्जुमा, ना वो आप निकलें मगर ये कि कोई सरी बेहयाई की बात लाएं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु इसकी तफसीर में फरमाते हैं, इससे मुराद ये है कि जब औरत शोहर के घर वालों को बुरा भला कहती हो तो वो फाहिशा बेहयाई की बात लाने वाली है। अगरचे मुराद इससे इद्दत के दिनों में निकालना है, लेकिन यहाँ मकसूद पर तंबीह मतलूब है। औरत किस सूरत में खुला ले सकती है? अगर अजियत देना शोहर की तरफ से हो तो औरत को इख्तियार है कि वो बतौर फदिया माल देकर छुटकारा हासिल कर ले, यानी खुला ले ले, और मर्द ने औरत को जितना माल बतौर महर दिया था उससे ज़्यादा लेना मकरूह है, क्योंकि इस सूरत में औरत को हलाक करना, उस पर ताकत से ज़्यादा बोझ डालना और शर्मगाह की तिजारत होगी। अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है,
فلا جناح علیہما فی مفترت بھی، سورہ بقرہ ترجمہ، تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے، پھر جتنا عورت نے مرد سے لیا ہے اتنا ہی اس سے کم فدیہ کے لائق ہے۔ خوشبو جنت سے محروم عورت، اگر عورت بلا وجہ طلاق مانگے تو وہ گناہ گار ہوگی، چنانچہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقها من غیر ما باس لم تارخ رائحۃ الجنہ، یعنی جو عورت بلا وجہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گی۔ ایک روایت میں ہے فالجنۃ علیہا حرام، یعنی اس پر جنت حرام ہے۔ ایک روایت میں ہے المختالیات ہن المنافقات، یعنی بغیر کسی عذر کے خلا کا مطالبہ کرنے والی عورتیں منافق ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔